हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आई एम चेतन गर्ग, योर मास्टर टीचर टुडे फॉर एनटीएससी एमपी मैथ्स डिस्कशन, राइट। तो आज हम एनटीएससी का एमपी का पेपर डिस्कस करेंगे। एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि एमपी का एनटीएससी का पेपर जनरली काफ़ी इजी रहता है, राइट। एंड दिस ईयर ऑल्सो एमपी का मैथ्स पेपर काफ़ी इजी था कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट। हरियाणा एंड महाराष्ट्र का एज यू नो काफ़ी अच्छा पेपर होता है, बट एमपी का एज कंपेरेटिवली काफ़ी इजी पेपर रहता है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, राइट। So this was the first question of NTSC Maths, and it is a question of geometry. In this question, it is being mentioned that if B is perpendicular to this your AC, right? If B is perpendicular to AC and angle EBC is it is given to be 40 degree, right? And DAC is given to be DAC. This angle is given to be 30 degree, right? Then we need to find the value of X and that of Y, right? First of all, this angle is 40 degree, this is 90 degree. तो if we consider triangle BEC, अगर हम BEC triangle को consider करते हैं तो y comes out to be 50 degree, right? Because this is 90, this is 40, and sum of angles of a triangle is nothing but 180, right? And clearly x is an exterior angle of the triangle ADC. So x will be sum of the interior two opposite. So it will be 30 plus 50, so that is 80. So x is 80 and y is your 50. So 80 comma 50, that should be your answer. As you can see, this is very easy question, right? So let's proceed to the next question. It is saying that a right circular cylinder is just enclosing a sphere of radius r, right? Then surface area of the sphere क्या होता है? 4 pi r square, right? And equals to the curved surface. Okay, we need to check the option, है ना? Curved surface area of a cylinder is 2 pi r h. And what will be h in this scenario? It will be 2r, है ना? So basically this is also equals to 4 pi r square. So we can say that both of these are equal. So surface area of the sphere is equal to the curved surface area of the cylinder. So A must be the perfect answer, right? Chalo, great. Let's proceed to the third question. It is a very easy question. You can take x common and it is x minus 2. So zeros of the polynomials are x equals to 0 and x equals to 2. So 0 and 2 are the two zeros of this polynomial x square minus 2x, right? Chalo, let's proceed to the fourth question. Again an easy question. Largest chord of the circle. Jaldi se batao kya hoga? Yes, that will be diameter, right? So B was the perfect answer to this question. So as you can see, paper बहुत easy है, right? Alright, this question is saying 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of a cubic polynomial px, then px is, ठीक है। तो हमें एक ऐसा polynomial बताना है जिसके zeros क्या हैं? 3 minus 1 and minus 1 by 3. So what we can do, we can just solve x minus 3 into x plus 1 into x plus 1 by 3, right? One, we can simplify this, or we can check from the options, right? Let's just simplify this, right? So even if we multiply it by 3, then also the zeros will still remain same. Why we are multiplying it by 3? Because here 1 by 3 is there, which is a rational number, and clearly as you can see in all the options, the coefficients are natural numbers, right? So this will become x minus 3 into x plus 1 into 3x plus 1 upon 3. This 3 will get cancelled out with this 3, है ना? So just multiply these three equations. What we will get? 3x cube, right? Then what we will get? We will get x square का कितना बनेगा? 3 okay, minus 9x square plus 3x square and plus x square. तो minus 5x square minus 11x बनेगा, right? And what else it will become? It will become minus 3. Yes, so this should be the answer. 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. So C was the perfect answer for this question, right? Alright, in Euclid division lemma, for given positive integer a and b, there exists a unique integer q and r satisfying this. तो basically Euclid division lemma क्या कहता है? अगर हम किसी भी नंबर a को b से डिवाइड करते हैं तो then there will be a quotient and there will be a remainder, and we all know that this remainder, it should be greater than or equal to 0 but less than this b, right? So what should be the perfect answer? B is the perfect answer.
तो जैसे कि आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सीधा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, तो दैट वाज वेरी 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 इजी, राइट। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, है ना। ओके, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो, द थ्योरी इज इफ दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं, a1 upon a2 that should not be equal to b1 upon b2, this is the condition, है ना, for unique solution। तो यहाँ पर अपना a1 क्या है 4, है ना, तो 4 upon what is a2, a2 is 2, that should not be equal to b1, b1 is p upon b2, right। तो this is 2 and when 2 is cross multiplied by this 2 we will get p should not be equal to 4, right। तो C was the perfect answer for this question, right। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ऑल राइट। यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है ना, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इफ यू कंसिडर सी पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, राइट, it is 2x square and on the right hand side it is x square, तो still we will be left with an x square, है ना, तो this is a quadratic, ये भी quadratic है ना। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1 एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। सो बी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ए इज अ क्वाड्रेटिक, सी इज अ क्वाड्रेटिक, बट हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, राइट, तो बी विल बी आवर परफेक्ट आंसर। ओके, काफी बच्चों को शायद डी भी लग रहा होगा भैया, बट डी जो क्यूबिक है वहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दोनों साइड पे कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो डी इज नॉट अ क्यूबिक, डी इज अ क्वाड्रेटिक, सो डी विल नॉट बी आवर आंसर विल बी सिंपली बी, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, बट यस इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने सिली मिस्टेक की होगी, बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन को टिक किया होगा कंसिडरिंग इट टू बी अ क्यूबिक, राइट। चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये 12 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे 99 तक, राइट। 12 इज नथिंग बट 3 इंटू 4, राइट, एंड 99 इज नथिंग बट 3 इंटू योर 33, ठीक है। तो 4 से 33 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, बेसिकली देयर आर 30 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3, आंसर विल बी सिंपली 30, राइट। तो एज यू कैन सी यार बहुत आसान से क्वेश्चन है ना। अगर हम महाराष्ट्र और हरियाणा के एनटीएससी पेपर की बात करें तो उसके सामने तो ये बहुत इजी पेपर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन योर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो इसका आंसर तो सीधा सी हो गया, ठीक है। Okay, the next question is the point 7,3 divides the line segment joining the point 4,-3 and 8,5 internally in the ratio, okay, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट से ये पॉइंट है 4,-3, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 8,5, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है 7,3 जो इंटरनली इसे किसी कुछ रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, हमें वो रेशो निकालनी है, ठीक है। रेशो को मान लेते हैं k/1, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, 8 टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स दिस 4 अपॉन k प्लस 1, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ योर एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 7। अब सिंप्लीफाई कर लो, 8k प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7k प्लस 7, राइट। तो k कम्स आउट टू बी 3, तो रेशो इज 3:1 विच इज डी ऑप्शन, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, बेसिकली ऑफ हाइट 6 मीटर, है ना, कास्ट अ शैडो 4 मीटर, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है भाई, उसने 4 मीटर की शैडो ग्राउंड पे बनाई एंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है कोई, ठीक है, लेट से h हाइट की है एंड इट कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर, ठीक है। सेम टाइम पे ये शैडो 28 मीटर की है। तो बेसिकली सिंस टाइम इज सेम तो दीज टू एंगल्स शुड बी सेम, राइट। तो दैट इज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स h/28 दैट शुड बी इक्वल टू 6/4। अपने से पूछा गया देन द हाइट ऑफ द टावर, बेसिकली h निकालना है, तो h विल बी 6/4 इंटू 28, सो दैट कम्स आउट टू बी 42। सो D was the perfect answer
फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक सेक्टर है, आप सबको सेक्टर पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। ठीक है, वो जो पिज़्ज़ा की स्लाइस होती है उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। लेट्स से एक ये सर्कल था पूरा, है ना, कंप्लीट सर्कल। भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है। ठीक है, थीटा एंगल है, राइट। आर्क की लेंथ हमें एल लेंथ निकालनी है, राइट, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द लेंथ दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग इट विल बी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, राइट। तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, विच इज नथिंग बट थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1042 डिग्री। ओके, देखो 1042 और 1042 को 1048 और 42 को अगर आप देखोगे, 1042 को हम क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 48, राइट, एंड 90 माइनस थीटा इज कॉट ऑफ थीटा, है ना, तो इट विल बी कॉट ऑफ 48 डिग्री। एंड कॉट ऑफ 48 क्या होता है? 1 अपॉन 1048 डिग्री, राइट। सो यू कैन सी, अगर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1042 डिग्री इंटू 1048 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 1। सिमिलर लॉजिक से 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, दैट विल बी 1, राइट। तो इन चारों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भैया? दैट विल बी सिंपली 1। तो इसका आंसर सी आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आयरन of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter, right, of uniform thickness। ठीक है, then the radius of the wire पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो आयरन का वॉल्यूम कितना है, राइट? डायमीटर है 1, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा 1/2, तो आर स्क्वायर इज 1/4 इंटू एच इज योर 8, राइट, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर हमें चाहिए, है ना, इंटू एच इज योर 18 मीटर, तो इट विल बी 1800 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस पाई विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस पाई, राइट। तो हेयर इट विल बी 2, हेयर इट विल बी 900, तो आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 900। तो इसका मतलब हो गया आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 30, क्या चीज? सेंटीमीटर। तो अपने से रेडियस ऑफ द वायर पूछा गया था, तो दैट विल बी ए 1 अपॉन 30 सेंटीमीटर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 23, 21, 19 अप टू एंड सो ऑन टिल 5। इसको हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं 5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। आगे जाते हुए तो पीछे से आएंगे तो इट विल बी 2, है ना, तो 5, 7, 9 एंड सो ऑन 23। एक ही बात है ना, टर्म्स को जस्ट उल्टा किए। ठीक है, तो 23 इज द लास्ट टर्म, ए प्लस n-1 इंटू डी। वट इज डी? डी इज योर 2 इस सीरीज में। अगर वहां से करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? 5 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। डी इस वाली के लिए -2 होगा। तो एक ही बात है, जो मर्जी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते हैं तो 23 - 5 18 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n-1। तो 9 इज n-1, तो n आ गया आपका सीधा 10, राइट। तो 16 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। ठीक है, तो भाई एक ताश में, एक पत्तों की गड्डी में कितने एसेस होते हैं? ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड के सेट में देयर आर 4 एसेस, राइट। सो हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट विच आर नॉट एस, राइट? दे विल बी 48, 52 माइनस 48, 52 माइनस 4 विच इज 48। तो एक कार्ड हमने निकाला है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दैट विल नॉट बी एन एस, दैट विल बी सिंपली 48 अपॉन 52, which comes out to be your 12 upon 13, right? So A was the perfect answer for this question, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर। रिमाइंडर पूछा गया, ओके। अब ये वाला इक्वेशन क्यूबिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। दिस इज -x³ राइट प्लस 3x² प्लस 5x - 2। ठीक है, इसको भैया हम डिवाइड कर रहे हैं किससे?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से, तो अपने से रिमाइंडर पूछे तो पहले माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो ना, तो इट विल बी माइनस एक्स क्यूब और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। तो प्लस प्लस माइनस दैट गेट कैंसल्ड आउट, बट वी आर लेफ्ट विथ 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस these two will get cancelled out. What will be the remainder? Minus 2 plus 4, 2. So 2 is the remainder. That means B is your perfect answer, right? Chalo. Next statement. Which of the following statements is true? Next question is, every whole number is a natural number. No, this is incorrect because 0 is a whole number which is not a natural number. Every integer is a rational number. Yes, because every integer can be expressed in the form of p by q, where p will be your integer and q will be 1, right? For example, minus 4, that can be expressed as minus 4 upon 1. So B must be the correct answer because every integer is a rational number, right? All right, so last question of this MP NTSC, it is the median and mode of this series, right? So okay, 14 are appearing, 1 2 3 4, 4 times 14, 14 14 14 14, right? Then the next higher number is 18, I guess. So 18 is appearing 1 2 and 3, okay? So 18 is appearing 3 times, 18 18 18. The next higher number is okay, we have used 14 14 18 18 14 14 and 18. Next higher number is 22, then 23, then 25. Okay, we have forgot 17. All right, so 14 14 14 के बीच में one number will be 17, है ना, right? Next higher number is 22, then 23, then 25, then 28. Okay, how many numbers are there? 4 5 8 9 10 11 12. Let's cross check it. 3 3 6 3 9 3 12. Okay, then the median is 12 number है, तो हमें in between जो दो नंबर है उनका मीडियन देखना होगा. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, these are the two mid numbers, है ना. तो इन दोनों का 18 प्लस 18 बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी 18. तो मीडियन इज 18. मोड कौन सा नंबर होता है? जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा है, राइट? तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली 14 इज अपीयरिंग, सो मोड इज योर 14. सो ए विल बी द परफेक्ट आंसर, राइट? तो यार दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, है ना. आज हमने एमपी का एनटीएससी का पेपर डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग एनटीएससी स्टेज 1 ऑफ उत्तराखंड, राइट? तो जैसा आपने देखा मध्य प्रदेश का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था कंपेयर टू हरियाणा एज एंड कंपेयर टू महाराष्ट्र, राइट? तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक